गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस चैप्टर में भक्ति और सूफी ट्रेडिशंस में जो हम करने जा रहे हैं दैट इज़ काइंड ऑफ रिवीजन। ठीक है, तो जो वर्शिप ऑफ मेजर डाइटीज़ थे वो थे विष्णु, शिवा एंड गॉडेस ऑफ हुम वाज विजुलाइज इज अ वेराइटी ऑफ फॉर्म्स, है ना। देन देयर वाज अ इंटीग्रेशन ऑफ द कल्ट्स। देयर वर एटलीस्ट टू प्रोसेस ऑफ वर्क. One was a process of disseminating Brahminical ideas, and other were Brahmins accepting and reworking the beliefs and practices of these and other social categories. There was great traditions also, great and little tradition, which was described by Robert Redfield of 20th century. He described about the peasants category, ठीक है, peasant society, the society of agrarian society, which was divided into two parts, that was great tradition and little tradition. Great traditions में there was the practices of priest and the rulers, while in little traditions the practices of the local practices of the peasants, किसानों की थी. ठीक है, अब यहाँ पे जो था there was a difference in the conflict. There was one kind of worship, that was tantric worship, which include the goddess form of worship, and it was practiced in several parts of India, and it was open for both women and the man, and it was against the caste and the class. Then the principal deities of Vedic traditions were Agni, Indra and Som. That was became marginal figure, rare figure, and virtual representation. And later on there was a rise up of the three god and goddesses, that was Vishnu, Shiva and goddess in the Vedic mantras. तो इट मीन्स वर्शिप किसकी होने लगी, विष्णु की, शिव की और गॉडेसेस की होने लगी. एंड देयर वाज समटाइम कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द वैदिक ट्रेडिशन एंड दोज ऑफ द तांत्रिक ट्रेडिशंस. व्हाई? बिकॉज जो वैदिक ट्रेडिशन था दे बिलीव इन द हाइम्स, चांटिंग ऑफ हाइम्स एंड सेक्रीफाइसेस while they perform the yajnas. जबकि जो तांत्रिक प्रैक्टिस है दे वर अगेंस्ट इट एंड दे बिलीव इन कास्टिज्म. Did not believe in casteism, but believe all are equal. Man and woman can join the tantric puja. Then poems of prayers, early tradition of bhakti. अब evolution in the form of worship, poets, saints as leader around देयर डेवलप कम्युनिटी ऑफ डिवोटीज़, है ना. तो वर्शिप होने लगी, फॉर्म ऑफ वर्शिप के कारण पोएट, संत आ गए थे, लीडर्स आ गए थे, जिन्होंने एक कम्युनिटी से, समुदाय सा तैयार कर लिया था फॉलोअर्स का. और भक्ति जो थी, शब्द आ गया. भक्ति का मतलब था सेल्फ डिवोशन टू गॉड, ईश्वर के प्रति असीम कृपा. एंड इन दिस वे भक्ति मूवमेंट वॉज डिवाइडेड टू पार्ट, सगुन एंड द निर्गुण. सगुना मीन्स हैविंग द एट्रीब्यूट, मीन्स ए पर्टिकुलर गॉड की वर्शिप करना, लाइक विष्णु एंड शिवा. वाइल निर्गुण मीन्स अ गॉड इज हैविंग नो शेप, with imagination they worship the god without the attributes, visheshan rahit. Then we do about the alvars and nenas of Tamil Nadu. Some of the earliest bhakti movement in the 6th century were led by the alvars, the devotee of Vishnu, and nenas, devotee of Shiva. बच्चों आपको अलवार कैसे याद रखना है, V means the विष्णु and nenas में ऐसे तो मीन्स शिवा. तो जो अलवार वाले थे वो विष्णु के उपासक थे, तो वही नेनार जो थे वो शिव के उपासक थे. And they traveled from one place to another singing hymns in Tamil Nadu in praise of the god. And during their travels they identify certain shrines as abode of their chosen deities, made larger temples. जहाँ जहाँ वो जाते थे वो तीर्थ स्थल बन गए, और वहाँ पे उनकी प्रमुख भगवान जो थे उनके मंदिर बनाए जाने लगे. Singing composition of these poet saints became the part of temple rituals. In these shrines added worship of saint images. तो संतों की भी जो थी इमेजेस बनने लगी, उनकी जो कंपोजिशन था, सिंगिंग कंपोजिशन था, वो गाया जाने लगा मंदिरों में. देन alvars and nenars they protested against the caste system and dominance of the brahmins, क्योंकि समाज में बहुत ज़्यादा caste system था या dominance of brahman बहुत ज़्यादा था, उसका उन्होंने विरोध किया. Then one of the major anthologies of composition by alvars was नलियार दिव्यन प्रबंधम. ये एक तमिल वेद था जिसकी रचना अलवार संतों के द्वारा की थी. आप कैसे याद करोगे, नलियार यानी कि नारियल से रिलेटेड है, दिव्या किसी लड़की का नाम है, प्रबंधम, तो नलियारा दिव्या प्रबंधम वॉज अ तमिल वेदा विच इज़ रिटन बाय द अलवार सेंट्स. देन कुछ वुमेन डिवोटीज़ भी थी, जिसमें अंडाल नामक एक स्त्री थी जो कि अलवार संतों को फॉलो करती थी, यानी कि वो विष्णु की उपासक थी. तो वहीं कलियार कल अमियार जो थी वो शिव की डिवोटी थी, और जो कि पाथ ऑफ एक्सट्रीम एसेटिज्म को, यानी कि घोर तपस्या के मार्ग को अपनाती थी. एंड the women renounced the social obligations and challenged to the practical norms, यानी कि उन्होंने
मातृवंशिकता को उन्होंने जोड़ दिया, ठीक है, इम्पोर्टेंस दी है। तो इट मीन्स हेड ऑफ द फैमिली वॉज द मदर, ठीक है, द हेड ऑफ द फैमिली वॉज द मदर। देन द रिलेशन इन द स्टेट्स। अब क्या हो गया कि जो अगर हम साउथ पार्ट में जाते हैं तो तमिलनाडु में चोला शासक थे जिन्होंने भक्ति को या ब्राह्मण्स को जो था बहुत ज़्यादा समर्थन किया था। इन्होंने टेम्पल्स को बनाने के लिए बहुत सारा लैंड ग्रांट दिया था। विशेष तौर से विष्णु और शिव के जो मंदिर थे वो बनने लगे थे, और इसमें चिदम्बरम, तंजावुर, गंगई चोलपुरम टेम्पल्स जो थे वो कंस्ट्रक्ट हुए थे बाय द चोला रूलर्स, ठीक है। और बोथ नैनाज एंड अलवाज जो थे वो पीजेंट्स को वेलाल कहा करते थे वहाँ पे। और इस तरह से जो थे जो चोला किंग्स थे उन्होंने प्रोक्लेम किया पावर एंड स्टैच्यूज़, अपनी मान प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए उन्होंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया था। और कहा जाता है कि जो किंग्स जो थे इंट्रोड्यूस द सिंगिंग ऑफ तमिल हाइम्स। जो तमिल जो शैव धर्म के थे उनके कुछ हाइम्स थे, कुछ मंत्र थे जो कि जो तेवारम नामक टेक्स्ट बुक में शामिल किए गए थे। और कहा जाता है कि इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस फ्रॉम अबाउट 945 सजेस्टेड दैट चोला रूलर्स प्रांतक फर्स्ट was the concentrated metal images upper Sambandar or Sundaran, a Shiva temple, in a Shiva temple. अब आते हैं हम द वीर शैवा ट्रेडिशन इन कर्नाटका। तो जो वीर, जिस तरह से तमिलनाडु में अलवार और नैनार संत आए थे, ऐसे ही जो था वीर शैव जो थे वो कर्नाटक में आए। और कर्नाटक में 12th सेंचुरी में जो एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था वासावना, जो कि एक मिनिस्टर थे कालाचुरी रूलर में, उन्होंने एक नया मूवमेंट स्टार्ट किया था जिसको कि वीर शैव कहा गया है या लिंगयात कहा गया है। तो जो लिंगयात वाले थे वो शिव के उपासक थे, शिव को फॉलो करते थे। जो मैन थे वो यूजली वियर अ स्मॉल लिंगा इन अ सिल्वर केस इन द लूप स्ट्रंग ओवर द लेफ्ट शोल्डर। तो अपने लेफ्ट कंधे पे वो इस शिव के लिंग को धारण करते थे एक स्मॉल केस में रखकर। जो लिंगयात वाले थे वो इस बात पे विश्वास करते थे कि आफ्टर डेथ दे विल यूनाइट टू शिवा एंड दे डू नॉट प्रैक्टिस द फ्यूनररी राइट, यानी कि ये शव विधान क्रिया को नहीं मानते थे, बल्कि ये लोग जो थे डेड बॉडीज़ को क्रिमिनली बरीड करते थे। एंड अगेन द लिंगयाट्स वर अगेंस्ट द आइडिया ऑफ कास्ट सिस्टम एंड दे डिड नॉट बिलीव इन द थ्योरी ऑफ रीबर्थ, उस पर उन्होंने क्वेश्चन कर दिए थे। देन दे वन द ट्रस्ट अमंग दोज हु वर मार्जिनाइज्ड विद इन ए ब्राह्मणिकल सोसाइटी। उन लोगों का विश्वास जीत लिया जो कि ब्राह्मण समाज में इनको निम्न दर्जे से देखा जाता था। देन दे डिसअप्रूव द धर्मशास्त्र कई कई जगहों पे, सच एज पोस्ट प्यूबर्टरी मैरिज, यानी कि जब लड़की बड़ी होगी उसके बाद ही विवाह होगा, एंड द री मैरिज ऑफ विडो में ये विश्वास करते थे। एंड द इसमें जो था महिलाएं और पुरुष दोनों इस वीर शैव ट्रेडिशन में शामिल हो सकते थे। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो मेरी समझ में आई होगी, इस चैप्टर का जो हमने ये रिवीजन स्टार्ट किया था आज।